Okay. So assalamu alaikum. We are taking next part, okay, topic for duality, which is duality theorem. So what I'm going to do today is I'm not going to bombard you with all the theorem statements. What are we going to do in this duality is how can we use these theorems to make our dual problem simple. Okay, that is the first thing that we are going to do. The second thing that we are going to do is how can we understand what is the concept behind duality, what are we going to do with this duality, and how can we interpret this duality thing in our simplex. Okay, so I'm just going to list down the theorems that we are going to study. Okay, I'll just list down the theorem names for you. First theorem that is very important for you to understand is weak duality theorem. Very simple theorem, don't worry about the statement. Second theorem that is very important for you to study is complementary slackness theorem. And the third type that we are going to study is main duality theorem. Okay, and main duality theorem is also given another name, optimal criteria theorem. So these are the basic three theorems that we are going to study today. First one is weak duality theorem, second one is complementary slackness theorem, and the third one is main duality theorem. Okay, after this the fourth part that we are going to study today is dual simplex method. Okay, the next part that we are going to study is dual simplex method. There is one more part in the syllabus that I am excluding, but it is there in the syllabus, that is sensitivity analysis. So remember, when I am not doing sensitivity analysis, that means it is very tough. That is the main point. And I am very sure these questions will not be asked in the exam. Since it is objective based exams, it might be that your exam will be objective based. Then you might be asked some questions about sensitivity. So I'll brief you at the end what do you mean by sensitivity analysis. Okay, don't worry about it. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. So basically what we are going to do today is we are going to study these four things. Okay, the first one is weak duality theorem. One second, it is not working. My system is not working. 1 second. How is it like here? 1 second. Give me a second. First one is weak duality theorem. Second one is complementary slackness theorem. Third one is main duality theorem or optimum criteria theorem. And the last one is dual simplex method. This is the thing that we are going to study. तो हम स्टार्ट करते हैं, किसके साथ स्टार्ट करेंगे, कोई बता सकता है? पहली थ्योरम का नाम क्या है? Weak duality theorem. वेरी नाइस, वीक ड्यूअलिटी थ्योरम. अब इसको समझने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ. एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं. सपोज करो एक क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 9x2 subject to some conditions. I'll just write the condition: 3x1 plus 3x2 less than equal to 21, and the next one is 4x1 plus 3x2 is again less than equal to 24. Okay, one more thing that is given to us is x1 x2 is greater than equal to 0. Okay, first thing that I want to know from you, can we solve this question by a graph, yes or no? Tell me. Yes, okay. We can solve this question by graphical method.
So what I am going to do, I am not going to use simplex method. I am just going to use a very simple method and try to solve this question by graphical method. Okay. ठीक है, तो अब ग्राफिकल से आप लोगों ने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, नवाज सर ने पढ़ाया है आपको? Yes, sir. Are you there everyone? नवाज सर ने ग्राफिकल मेथड पढ़ाया है बेटा, है कि नहीं है बच्चे? घर में खाना खा रहे हैं क्या? Yes, sir, पढ़ा है सर. अच्छा, घर में खाना चल रहा है क्या? खाना वाना खाते हुए पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर. नहीं खा रहे हो तो खा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खाते हुए पढ़ सकते. नहीं सर. अरे वो भी बता यार, मुझे भी भूख लगी, मेरे घर में खाना नहीं बना है, मेरा गैस खत्म हो गया है आज, और ओवन जो था ना, ओवन का फ्यूज उड़ गया था, तो स्विगी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी था, तो मैं काफी बिजी था आज, सो सॉरी, तो मैं खाना नहीं खा पाया. क्या बना है बता दो जो खा रहे हैं, कुछ अच्छा बना है तो बता दो मुमरा वालों. जूस पी लो सर, जूस. जूस ठीक है बेटा. बकरा अंगारा बना है सर, अंगारा. क्या बना है? अंगारा. हाँ क्या बात है यार, शादी वादी कर लिए क्या तुम? अंगारा अंगारा बना के खिला रहे लोग तुम्हें. किए क्या? एक सेकेंड, हाँ मेरा हेडफोन आ गया, बस एक मिनट. एक मिनट बस, हेडफोन कनेक्ट हो जाने का. शादी बात तो अंगार मिलते ना सर. ओहो कौन है भाई ये? अरे बाबा रे बाबा, इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे. कौन है 15 एमी 97? बाबा रे बाबा. Am I audible now? Yes sir. Yeah, now listen to what I am saying. Okay, we'll get to the topic. I'll just use another color for you and just I'll try to plot this thing. Very simple thing. 3x1 plus 3x2 is equal to 21. So x1 by 7 plus x2 by 7 is equal to 1. तो coordinate क्या रहेंगे? 7,0. Suppose this is x1 axis. I hope everyone knows. That's why I'm doing it directly. Is it okay for everyone? Yes sir. Yes. Yes okay. sir. Yes. So suppose this is 7,0 and this is 0,7. Okay. So what I'm going to do is I'm just going to draw a line for you, passing through these 2 points. Okay. Don't worry, it is very short subtopic that we are going to do. It will get finished very quickly. Don't worry about it. Just look at the concept that we are doing. So this is less than, right? So less है, तो this will be towards the origin. इक्वेशन की लाइन क्या है? इक्वेशन की लाइन जो भी है वो इसके ऊपर लिख लो चाहिए तो. क्या है इक्वेशन की लाइन? 3x1 plus 3x2. हाँ, इस पे मैं डायरेक्ट इंडिकेट कर देता हूँ रेड कलर से, तुम्हारे लिए आसान रहेगा. ओके, नेक्स्ट. ओके सर. नेक्स्ट क्या करते हैं? वी विल टेक अनदर गुड कलर फॉर अस. या ना, नेक्स्ट पॉइंट इज 0,6 sorry 6,0 and 0,8. Is it right? So this is suppose 6,0 and this will be suppose here it is 0,8. Okay, I'll just extend the axis a little bit and this is my x2 axis. So 0,6 and this value, these things 6,0 and 0,8 we have drawn. So we will just try to plot this thing too. Suppose I am trying to plot this thing again. ठीक है, मैंने इसको भी प्लॉट कर दिया. अब ये भी लेस है तो ये भी कहाँ रहेगी? Towards the origin. So this is my second line that I have plotted. Simple. Okay. Now what I am going to do? X1 is greater than 0. So x1 greater than 0 is the equation of x2 axis, right? तो ये हो गया x1 greater than 0. Am I right? और x2 greater than 0 is equation of x1 axis
and x2 greater than 0 will be above. तो सबका common region क्या हो गया? Is it okay for all to Feasible understand? region, no? Feasible region. Common region is feasible region. So we have got this feasible region. Is it okay for everyone? Yes. Now, what are we going to do? We are going to look at the corner points. So I'll just mark the corner points again. Okay. This is my one corner point. This is another corner point. This is third corner point, and this is fourth corner point. So can anyone tell me what are the coordinates of the corner point? One coordinate is 0, 0. Okay. Second Right. coordinate is 0, 7. 7. One more coordinate is 6, 0. 0. And the last one is, we need to solve these two equations. Can anyone solve it for me? Just solve it as fast as possible. Okay. So what did we do? We found the value 3, 4. It is coming out to be 66. So 0, 0 ka 0, 0, 7 ka 63. Just put it in Z max. Okay. And then 6, 0 is 60. And this one is 10 into 3 plus 9 into 4. This will be 66. So what is the value of Z max? Z max is equal to 66. Okay. Now we will do its dual. ये पता है इसको क्या बोलते हैं? Primal. क्या बोलते हैं? Primal, right? Right. So now what we are going to do, we are going to find the dual. Simple. Okay. Now to find the dual, what are we going to do? Can anyone help me out? Maximize का क्या होगा? Minimize. Minimize. Z का क्या होगा? W. This one will be Y1. This one will be Y2. So what will be my Z? 21 Y1 plus 24 Y2, right? Subject to condition में क्या आएगा? 3 into Y1, 4 into Y2. So I will write 3 into Y1 plus 4 into Y2 is equal to what? Is 10. मिनिमाइज है तो सब, मैक्सिमाइज है तो पहले क्या चेक करने का, लेस देन है या नहीं था ना, तो आगे बढ़ सकते हैं. करेक्ट, याद है ये? तो मिनिमाइज है तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन आएगा या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? अगेन 3, ये देखो 3 इंटू Y1 प्लस 3 इंटू Y2. तो क्या होगा? 3Y1 प्लस 3Y2 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? Greater than equal 9. to 9. Very nice. Now we will take another axis. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. Take it very easy. Don't worry. Okay. Is the full question visible for everyone? Visibility Yes, sir. तो issue नहीं है ना? हाँ. 9. Now just look at this thing. I think there is someone in the chat. Okay, that's okay. तो अब ये एक्सिस हो गई मेरी. कौन सी एक्सिस हो गई? एक एक्सिस हो जाएगी मेरी y1, दूसरी एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा? y2. ओके. अब पहली इक्वेशन प्लॉट करेंगे. क्या रहेगा? 10/3 आएगा या नहीं? 10/3 कितना होता है? 3.33. और 10/4 कितना होगा? 5/2 2.5. यस और नो? तो Yes, sir, this is 2.5. 3.33, 0 and second coordinate will be 0, 2.5. 2.5. So after doing this, we will draw a line. अब ये लाइन का इक्वेशन ग्रेटर है या लेस? Greater. Greater. Oh, Away God. or towards? Away. Away. So this is our first line. Now we will go to the next line. दूसरी लाइन के लिए क्या करेंगे बता सकते हैं? 3, 0, 0, 3. Is it right? Yes, sir. Right. 3. So this is 3, 0 and this will be suppose 0, 3.
Away or towards? Away, sir. Away. Very nice. Now, since and one more thing, y1 y2 will be greater than equal to 0, तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा. अब मुझे बताओ, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड रीजन है? फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि Unbounded. अनबाउंडेड? Very nice. Unbounded. Feasible region is unbounded. Very important for you to understand. This is my feasible region, right? Is everyone there with me understanding? Yes, Now sir. tell me the corner points. I'll just help you out with the corner points. Huh? Just look at this thing. ये corner point है, हाँ या ना? ऐसा एक रखूंगा तो corner सीधा point है. कौन है यार ये? Corner points दिख रहे? Corner points. Yes, sir. मिनिमाइज करने बोला ना, तो Yes. मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट्स तो देखना पड़ेगा अनबाउंडेड में भी कॉर्नर पॉइंट्स है या नहीं. तो अब कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए. कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3. एक और कोऑर्डिनेट ये वाला कौन सा था, याद है? ये वाला 3.33, 0. Zero. Yes or no? और ये कैसे मिलेगा? कर सकते हो सॉल्व मेरे लिए? ये वाला कोऑर्डिनेट कॉमन इंटरसेक्शन वाला Yes, sir. कैसे करोगे? इक्वेशन सॉल्व करो. Sir, 2 हाँ, and 1. 2 and 1. वेरी नाइस, थैंक यू. नाउ इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं? Z मीन. यस और नो? अब देखो इसमें रखते हैं 21 into 0, राइट और नॉट? और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी? 24 into 3 कितना होगा? कितना होगा? 72. यस और नो? इज एवरीवन लिसनिंग? है क्या? लोग हैं क्या? Yes, sir. यार तुम सब सो रहे हो क्या? लेक्चर में जागे हो ना बेटा तुम सब? थोड़ा सा एक्टिव रहो. दूसरा क्या आएगा? 3.3 किसमें पुट करेंगे? 21 into 3.3. X1. Y1. 70 Y1. आएगा. आई थिंक कितना आ रहा है? 70 आ रहा है ना, नियर अबाउट. Sir, 69.9 आ रहा है, वो 70. वही 69.99 70 होगा ना. और 2,1 2 पुट करो. 21 into 2 42. 42 plus 24 66 आ रहा है या नहीं? आ गया? आ रहा गया है, ना? आ गया. अब सुनो. आ गया, sir. First, everyone who is there in the lecture, shout with a yes. Yes. एक ही बच्चा है Yes. क्लास. अरे बेटा shout, let me know if you are there or not. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you, thank you, thank you. That's it, that's it. Now listen. Now listen to what I'm saying. देखो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इसको फिजिबल पॉइंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिजिबल पॉइंट्स. और ये भी जितने पॉइंट्स है ना, इनको भी बोलते हैं फिजिबल पॉइंट्स. ठीक है? और ये जो फिजिबल पॉइंट से आंसर आता है, इनको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या बतानी है कि अगर मेरा एक प्राइमल है, ठीक है, जो कि मैक्सिमाइजेशन में है. किसमें है? मैक्सिमाइजेशन में है. तो उसका जो ड्यूल रहेगा ना, जो कि क्या रहेगा? मिनिमाइजेशन में रहेगा. उसके जितने भी फिजिबल आंसर रहेंगे, जितने भी फिजिबल आंसर रहेंगे, कितने फिजिबल आंसर है? 72, 70, 66. वो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बड़े रहेंगे या इक्वल रहेंगे. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. अगर मेरा प्राइमल मैक्सिमाइजेशन है, तो जो मेरा ड्यूल मिनिमाइजेशन रहेगा, उसके जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन रहेंगे, that will be at least equal to the objective function of the primal. Understood? Okay, sir. At least equal to the objective function of the primal. It will never get less than the objective function of the primal. Is everyone there with me on this thing? Yes. प्रूफ दिख रहा ना सामने जो मैं बोल रहा हूं उसका? Yes, sir. अब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं. ये है हमारी पहली थ्योरम, जो नाम था ना वीक ड्यूअलिटी थ्योरम. ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ मैक्सिमाइजेशन प्राइमल,
I'm just writing it for you. For a maximization primal, every feasible solution of whose diol na? Every feasible solution of diol, ठीक है, which is what? ये feasible solution कौन सी है? Minimization type है ना? Every feasible solution of diol will be greater than or equal to को at least लिख सकते हैं या नहीं? At least equal to objective function of, sorry, हाँ, objective function ना? Yes, or sir. no? Objective. Will be equal to objective function of primal. Understood? पहला theorem समझा? Yes. Very nice. Now we will go to the next theorem. दूसरा थ्योरम क्या है मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? दूसरा थ्योरम मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम नहीं लेता हूँ, मैंने लिखा क्या था देखो, दूसरा थ्योरम मेन ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ते हैं। मेन ड्यूअलिटी थ्योरम का एक और नाम क्या है? ऑप्टिमल क्राइटेरिया थ्योरम। ओके ओके Okay, sir. अब ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मुझे ये बताओ, दोनों सॉल्यूशन फिजिबल है कि इनफिजिबल? फिजिबल है कि इनफिजिबल? बाउंडेड है अनबाउंडेड वो छोड़ दो, ये सॉल्यूशन कैसी है? बाउंडेड। ये सॉल्यूशन कैसी है? अनबाउंडेड। पर दोनों सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं? क्यों फिजिबल का मतलब क्या होता है? रीजन आना चाहिए। अनबाउंडेड बाउंडेड से फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? Yes, sir. ओके तो अगर मेरी दोनों सॉल्यूशन, अगर मेरा प्राइमल भी फिजिबल है और उससे जो मेरा ड्यूल आ रहा है वो भी अगर मेरा फिजिबल है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल रहेगा, याद रखना। क्योंकि देखो इसमें हमको क्या करना था, जेड मैक्स। जेड मैक्स क्या है इसमें? क्या है जेड मैक्स? 66. और इसमें जेड मीन क्या है? देखो तीनों में 72, 70 और 66। जेड मीन क्या है? 66। यस और नो? तो यही मेरी दूसरी थ्योरम है जो मैंने बोला ना, मेन ड्यूअलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम बता सकते हो क्या है? ऑप्टिमल Criterion theorem. क्राइटेरियन थ्योरम। ओके अब मैं ये थ्योरम भी लिखता हूं, एकदम सिंपल है। थ्योरम क्या है कि इफ माय प्राइमल, माय नहीं लिखना, इफ प्राइमल इज फिजिबल, ठीक है? इफ प्राइमल इज फिजिबल, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वी डोंट केयर, प्लीज रिमेंबर। इफ प्राइमल इज फिजिबल and its dual is also feasible. Okay, I hope everyone is okay with this. If primal is feasible, Yes, sir, okay. and its dual is also feasible, then क्या इक्वल रहेगा? Objective function will be equal for both. Okay, Yes, sir. objective function will be equal for primal and dual. Is everyone okay with this? Yes, sir. I want to see who is there in the lecture and who is not there in the lecture. माशाल्लाह, ये अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला पटेल नहीं आया? नहीं है? साकिब समझ रहा है तुम्हें? समय अफान। यस सर। 09 वाला जो CO 09, कंप्यूटर का CO 09, जैद अहमद अब्दुल हमीद, आपको समझ रहा है बेटा? यस सर। 2 थियरम्स हो गए ना? यस सर। कौन कौन से थियरम हो गए बेटा? वीक ड्यूअलिटी थ्योरम और मेन ड्यूअलिटी थ्योरम, ठीक है? मेन ड्यूअलिटी थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक प्राइमल फिजिबल है और उसका अगर ड्यूअल फिजिबल है तो दोनों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा? इक्वल, ठीक है? ओके यस सर। एक छोटा सा नोट और बताना था, बस वो सुन लो। ये बताना जरूरी है, थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, पर सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर मेरा प्राइमल अनबाउंडेड है, ठीक है, प्राइमल, और अगर सपोज करो मैक्सिमाइजेशन टाइप है, अगर ये अनबाउंडेड है, ठीक है,
तो इसका जो डियोल रहेगा ना, डियोल क्या रहेगा, इसका मिनिमाइजेशन रहेगा या नहीं, ये याद रखना, सब क्विज में आता है। इसका डियोल इनफिजिबल रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। फिजिबल का, अगर प्राइमल फिजिबल है तो डियोल भी क्या रहेगा, फिजिबल। अभी देखा या नहीं, हाँ या ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्राइमल मेरा अनबाउंडेड है तो डियोल क्या रहेगा, इनफिजिबल। और अगर मेरा डियोल डियोल मेरा जो क्या है, मिनिमाइजेशन, अगर वो इनफिजिबल है तो प्राइमल क्या रहेगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। रिवर्स भी पॉसिबल है ना, ये डियोल को मैं प्राइमल बोल दूंगा तो किसके बाप का क्या जाता है, जिससे स्टार्ट करते उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमल बोलते हैं ना, राइट और नॉट? यस सर। तो जिससे भी स्टार्ट कर रहे, अगर मिनिमाइजेशन में इनफिजिबल है तो मैक्सिमाइजेशन में अनबाउंडेड रहेगा, अगर मैक्सिमाइजेशन में अनबाउंडेड है तो मिनिमाइजेशन में इनफिजिबल रहेगा, याद रखना, ठीक है। यस सर। सिंपल, डन। ये एक नोट मुझे बतानी थी क्योंकि ऐसा भी टाइप आ सकता है ड्यूअलिटी में। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट थियरम जो है, बहुत अच्छा थियरम है और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा थियरम यही है, कॉम्प्लीमेंट्री, और इससे काफी चीजें आसान होती है, आपको आगे समझेगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थियरम। Now I want to listen from you. Have you heard any of these two word ever? कॉम्प्लीमेंट्री या स्लैकनेस, ये ओआर में सुना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री या स्लैकनेस में से कोई वर्ड ओआर में? ओआर में स्लैक वर्ड सुना है, स्लैक? ओआर में स्लैक वेरिएबल नहीं सुना, स्लैक वेरिएबल? सर एक स्लैक और सरप्लस करके सुने। स्लैक, स्लैक वही स्लैक या सरप्लस जो बोलते हैं, स्लैक सुना है ना, स्लैक वेरिएबल। स्लैक क्यों करते हैं, स्लैक वेरिएबल क्यों ऐड करते हैं, इक्वेशन को इक्वल टू में लाने के लिए, बराबर ना, इनइक्वालिटी Yes. को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग इज स्लैक वेरिएबल, करेक्ट? राइट। राइट, वेरी नाइस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। सपोज करो, एकदम अच्छे से सुनना, अगर x मेरा जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अच्छे से सुनना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन x और y में यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा तिगड़ा है पर बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ जाए। अगर x मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, z भूल जाओ, x मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है प्राइमल का, ओके, इज एवरीवन ओके? एंड y Yes, sir. मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है डियोल का, ओके, सिंपल, ठीक है। और अगर इसके ये जो x मतलब हमारा जो z रहता है, याद है ना, z रहता है। देखो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एकदम सिंपल सी चीज, हम z फाइंड करते हैं, z मैक्स। z मैक्स बनता किससे है, बहुत सारे वेरिएबल के x1 x2 से बनता है या नहीं, यस और नो? z1 में रहता क्या है, x1 x2, बहुत सारे x1 x2 की वैल्यूज मिलती है कि नहीं कॉर्नर पॉइंट्स में, यस और नो? यस सर। या ना? इसमें से Yes, सपोज करो ये वाला Yes, पॉइंट तुम्हें sir. बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है, क्योंकि ये तुमको क्या दे रहा है, सपोज करो 66 दे रहा है, और ये तुम्हारा क्या है, ऑप्टिमम, समझ रहे हैं? तो अगर z के जगह में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, x यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, x। ये x दोनों को इंडिकेट कर रहा है, x1 को भी इंडिकेट कर रहा है और किसको इंडिकेट कर रहा है, x2 को भी इंडिकेट कर रहा है। इज एवरीवन ओके नाउ? ओके, यस सर। एवरीवन ओके, प्लीज बी एक्टिव यार, मैं भी दोपहर में बैठा हूं ना, मुझे भी बोर हो रहा है, यस सर। प्लीज बी एक्टिव, प्लीज बी एक्टिव। मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता, नहीं होगा, बोर हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। अब सुनो, x मेरा अगर ऑप्टिमम है प्राइमल का और y मेरा ऑप्टिमम है डुअल का, मतलब y1 y2 और x1 x2। अब अगर सपोज करो मेरी इक्वेशन 2 है, कितनी इक्वेशन है, जो मेरा ड्यूअल था, प्राइमल था, उसमें 2 इक्वेशन है, तो अगर 2 इनइक्वालिटी है, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, 2 इनइक्वालिटी रहेगी तो स्लैक वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे या नहीं, रहेंगे या नहीं, हाँ या ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके स्लैक वेरिएबल को, जो S1 हम बोलते थे, प्राइमल के स्लैक वेरिएबल को मैं U से डिनोट कर रहा हूं, किससे डिनोट कर रहा हूं, U से। दिस इज द स्लैक वेरिएबल ऑफ प्राइमल, वेरी सिंपल आई एम डूइंग, ओके। स्लैक वेरिएबल प्राइमल का क्या है, U, और स्लैक वेरिएबल डियोल का क्या है, मेरा डियोल का क्या है, सपोज करो V, ठीक है। तो एक थियरम है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थियरम, जो थियरम बोलता है x इंटू वी
प्लस वाई इंटू यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मैं इसका मेथड तुमको अभी 2 मिनट में समझा दूंगा। थ्योरम क्या है? अगर x मेरा प्राइमल का सॉल्यूशन है, y मेरा ड्यूल का सॉल्यूशन है, तो x इंटू वी प्लस y इंटू यू इज इक्वल टू 0, where u is the slack variable of primal and v is the slack variable of dual। इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्राइमल और ड्यूल। तो ऐसे थ्योरम को ड्यूअलिटी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ये किसका सॉल्यूशन था बेटा? प्राइमल का। ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ड्यूल के साथ। ये किसका सॉल्यूशन था? ड्यूल का। ड्यूल का था ना? हाँ या ना? किसका सॉल्यूशन था? ड्यूल का। ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? प्राइमल के वेरिएबल के साथ, बराबर। तो ऐसे थ्योरम को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। अभी तुमको सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से समझ जाएगा। थ्योरम याद रखो। थ्योरम क्या है बोल सकता है कोई? थ्योरम क्या है? x इंटू सॉरी थ्योरम क्या है? x इंटू वी प्लस y इंटू यू इज इक्वल टू 0। हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी फॉर एनी टाइप ऑफ प्राइमल और ड्यूल, इनफिजिबल, अनबाउंडेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइप के प्राइमल और ड्यूल के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल है। और ये थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ओके 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 सर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे से देखना मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमाइज 10x1 प्लस 9x2, वही सेम क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू क्या था याद है? 3x1। किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके 3x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 21। और दूसरा क्या था याद है? 4x1 प्लस बोलो 3x2 is less than equal to 24. Okay, is everyone okay? हाँ यस सर ओके। अब ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आया था? सॉल्यूशन तो सबको याद है, 66 आया था। x1 क्या आया था? 3, x2 क्या आया था? 4, और z max क्या आया था? 66। सबको याद है ना? याद है या नहीं? सबको याद है बेटा? सबको याद है? हाँ सर। अब ध्यान दो, अब ये तो हमने किससे निकाला था याद है? ये सॉल्यूशन किससे निकाला था? किससे निकाला था? ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड से निकाला था ना। अब ध्यान दो, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को, मेरे पास कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन को। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन की इनइक्वालिटी हटाना चाहता हूं एलपीपी के मेथड से, तो मुझे स्लैक ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर, स्लैक ऐड। वेरी नाइस। तो व्हाट आई विल डू, I will rewrite this in the form of LPP. 3x1 plus 3x2 minus Plus s1 या S1. plus s1 Plus plus S1. s1 is equal to 21. Now I will rewrite this also. क्या रहेगा? 4x1 plus 3x2 plus s2 is Plus equal to S2. 24. Right? Now put Right. the value. ये put करके देखते हैं। देखो क्या put कर रहा हूँ? 3 into 3 कितना? 3 into 3 9. कितना? 9. 9. 3 into 4 कितना? 12. 9 plus 12 कितना? 21. That means S1 क्या मिला तुम्हें? तुम श्योर हो कि नहीं S1 क्या है? 0। Yes or no? For this solution S1 क्या है? 0। सब एग्री करते हैं? अब S1 की जगह मैं U1 बोलूंगा या नहीं? क्या बोलूंगा? चलो S1 रहने दो अभी के लिए, डरो मत। चलो कोई टेंशन नहीं। S1 है ना हमारा, S1 बोलते ना हम, S1 लिखे ना, ठीक है। Yes. यार हाँ, कलर कोई टेंशन मत लो, बस ध्यान दो। S1 कितना मिला? तुमने खुद डिडक्ट किया। S1 कितना मिला? 0। अब देखो इसमें भी पुट करते हैं। 4 into 3 कितना? 12। 3 into 4 कितना? 12। 12 plus 12 कितना बेटा?
कितना 24 24 मतलब जो हमारा, अगर हम इसको एलपीपी से सॉल्व करते तो S1 और S2 सॉल्यूशन से आउट होता है या नहीं? फाइनल आइट्रेशन में क्या Yes, रहता है? sir. X1 X2 रहता है या नहीं? इसीलिए तो S1 S2 X1 0 आ रहा है. एवरीवन एग्रीज टू व्हाट आई एम सेइंग? एलपीपी sir. याद है? तो मैंने इनडायरेक्टली याद. इसको एलपीपी लगा दिया है नहीं? लगा दिया ना एलपीपी, और सही. तुम्हें सब सॉल्यूशन निकाल दिया. ओके, अब तुम्हें मैंने क्या बोल रहा हूँ, इसका मिनिमाइजेशन तो तुम फाइंड कर सकते हो. मिनिमाइजेशन देखते क्या है. मिनिमाइजेशन याद हो गया मुझे, तो क्या रहेगा? 21 y1 प्लस 24 y2, राइट. सब्जेक्ट टू क्या रहेगा? 3 y1 प्लस 4 y2 Y2 ग्रेटर देन इक्वल टू greater 10 than equal to and 10. 3 y1 plus 3 y2 greater than equal to 9. Is everyone okay? 9. Right. y1 y2 is greater than equal to 0. यहाँ मैं लिखने भूल गया था, लिखना रहता है, ये भूल गया मैं. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब मुझे इसको ना, इसको बिना सॉल्व किए मुझे ना क्या चाहिए पता है? मुझे बताना है, सिर्फ मुझे ये जानना है. ये इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें? x इंटू वी प्लस वाई इंटू यू दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब ये इक्वेशन से ना मैं कुछ चीज बताता तुम्हें, अच्छे से ध्यान देना. इक्वेशन क्या है? x इंटू वी प्लस वाई इंटू यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. अब मुझे ध्यान दो, मुझे अच्छे से बताओ, x1 है या नहीं? x1 है या नहीं? x1 अगर है और ये टर्म को अगर 0 होना है तो v1 क्या रहना चाहिए? 0. यस और नो? यस. एकदम सिंपल चीज. x1 है 3, यस और नो? x1 क्या है? 3. और अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये टर्म प्रेजेंट रहेगा या नहीं? रहेगा ना प्रेजेंट. और अगर ये टर्म प्रेजेंट रहेगा तो इक्वल टू 0 होगा क्या? नहीं. तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल गया कि नहीं v1 0 है. I hope everyone Yes, is sir. okay. Everyone Yes, is sir. okay. Perfect. Everyone okay? Perfectly okay. Yes, sir. Now listen. Yes. अब दूसरी इक्वेशन देखो, इसको देखते हैं. दूसरा पार्ट देखो, x1 v1 y1 u1. I hope everyone is agree. u1 का मतलब क्या है? S1 है या नहीं मेरे लिए? u1 का मतलब है पहली इक्वेशन, u2 का मतलब है दूसरी इक्वेशन. अब मुझे बताओ S1 क्या है? S1 क्या है? 0. Yes or no? S1 क्या है? 0 है ना? This is nothing but my u1. Yes or no? तो Yes, sir. अगर S1 0 है तो y प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं? y प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं? नहीं रहेगा तो भी चलेगा और प्रेजेंट रहेगा तो भी चलेगा. दोनों कंडीशन है, या तो प्रेजेंट भी रह सकता है या तो 0 भी रह सकता है. एग्रीड? Agree. एवरीवन एग्रीज? यस सर. वेरी नाइस. ओके, अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं. फिर से यही कंडीशन, x2 v2 प्लस क्या रहना चाहिए? y2 u2 शुड बी इक्वल टू 0. यस और नो? अब मुझे बताओ x2 है या नहीं? है या नहीं? है. तो v2 क्या रहना चाहिए? 0. 0. u2 क्या आ रहा था बता सकते हो? u2 क्या मिला था अपने को पहले ही? क्या मिला था? 0. तो y2 क्या रहना चाहिए? u2 तो पक्का 0 इतना तो तुम श्योर हो गए. तो u2 या तो y2 या तो प्रेजेंट रहेगा या तो क्या रहेगा? 0. एग्रीड? अब ये इक्वेशन में देखो, ग्रेटर है या नहीं? तो ग्रेटर में क्या करते हैं? माइनस डालते हैं कि नहीं स्लैक वेरिएबल? तो माइनस क्या डालूंगा? क्या लिख सकता हूं मैं? v1 लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ क्या लिखूंगा? माइनस v2. अब मुझे पहली वैल्यू पता चल गई कि नहीं v1 v2 क्या है? v1 v2 क्या है? तुमने बताया ना मुझे v1 v2 क्या है. किससे पता चला? ये वाली इक्वेशन के हेल्प से पता चला या नहीं? क्योंकि मुझे x1 x2 मिल गया था. एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? यस यस. मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, एक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए तुम उसका स्लैक की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो. समझ रहे हैं? कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो. ये Yes. बताना था मुझे. एवरीवन एग्रीज टू व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन? यस और नो? मैंने क्या अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम. और मैंने क्या डिडक्ट किया? मैंने वो कंडीशन से ये बता दिया कि ये वाली कंडीशन में v1 v2 डायरेक्ट 0 रहेगा. समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट 0 मैंने बता दिया. कैसे पता चला? क्योंकि मैंने क्या अप्लाई किया था? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस. इज एवरीवन ओके? एक क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेंगे, बोलो तो ओके हो या नहीं? Okay.
Is everyone Yes, okay? sir. Okay. Please at least reply in the chat. Beta 32 Yes. people are there. Yes, sir. Please reply. Chalo, we'll move forward. Now I'll take one more question. Please ध्यान दो. I'll just let me have some water here. कितने थ्योरम्स कंप्लीट होने वाले हैं हमारे? कितने होने वाले हैं? 1 2 तीसरा चल रहा है ना? क्या नाम है इसका? क्या नाम है? Complementary slack theorem. वेरी नाइस, थैंक यू. Complementary slack theorem. 4x1 प्लस 3x2 दिया हुआ है मैक्सिमाइज. सब्जेक्ट टू कंडीशंस कुछ दी हैं, मैं लिख देता हूं. x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 7. अच्छे से ध्यान देना, बहुत सिंपल है. 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 11. ओके, और एक और कंडीशन दी है 4x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 26. और दिया है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है? ओके ओके ओके. इज एवरीवन ओके? नाउ एक और Yes, चीज दी sir. है अपने को, इसका सॉल्यूशन बोला है फाइंड करो. फाइंड सॉल्यूशन पहली चीज. ओके, और आगे क्या बोला है? फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल बाय यूजिंग एनी मेथड दैट यू आर कंफर्टेबल. एनी मेथड. ओके, ग्राफिकल यूज करना करो और या तो तुम्हें एलपीपी यूज करना करो, बट फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल बोला है. और बोल रहा है एंड देन फाइंड solution of dual without solving. Yeah, with the help of what? Can anyone tell me? Complementary slackness theorem. Okay, is everyone okay? Is everyone The okay? voice is breaking. Yeah, my internet got this unstable a little bit. Voice is My internet got unstable a little bit. Now is it okay? So please tell one more time. मैं disconnect भी नहीं कर सकता, or else. Now it will be fine. Now is it okay? Now the internet has come back. Yes. Is it now? Is it okay? Just let me know. Let me know. What I'm saying, find the solution of primal by Okay. any method. Listen. Find the solution of primal and then find the solution of dual with the help of what? Complementary slackness theorem. Complementary slackness अब theorem. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं, इसका तुम सॉल्व कर लेना. x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 2. ओके, इतना दिया है, और z की वैल्यू है 18. इज एवरीवन ओके? इतना दिया है. अब मैं बताता हूं. कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम याद करो क्या था? x1 इंटू v1 प्लस y1 इंटू u1 शुड बी इक्वल टू 0. अब x1 की वैल्यू कितनी है? x1 कितना है? 3. तो बताओ v1 क्या रहेगा? 0. एग्रीड? 0. एग्रीड एवरीवन? Yes, sir. नाउ लिसन. अब दूसरी कंडीशन, इसको छोड़ देते, वैसे इसको देखते बाद में. दूसरी कंडीशन x2 इंटू v2 प्लस y2 इंटू u2 इज इक्वल टू 0. अब देखो x2 कितना है? 2. तो v2 कितना रहेगा? 0. सिंपल. 0. एवरीवन एग्रीज? Yes, sir. Agree. अब आगे आते हैं. देखो दूसरा इसका डियोल लिखते हैं. इसका डियोल लिखना है अपने को. एक सेकेंड यार, देखो पेन का वही यही नहीं दिख रहा है. एक सेकेंड. इसका डियोल हम लिखते हैं. इसका डियोल क्या रहेगा? देखो ये रहेगा y1, ये रहेगा y2 और ये रहेगा y3. प्लीज ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ? y3. ओके, अब देखो जब y1 y2 y3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज का क्या हो जाएगा? मिनिमाइज. 7y1 प्लस 11y2 प्लस 26y3. ओके, सब्जेक्ट टू कंडीशंस 3 रहेगी कि नहीं? पहली कंडीशन क्या रहेगी?
y1 सॉरी 2 रहेगी ना सब्जेक्ट टू कंडीशन, सॉरी y1 प्लस 3y2 प्लस 4y3 मिनिमाइज है तो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4. इज एवरीवन ओके? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यार. ओके. नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, y1 प्लस y2 प्लस 5y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3. ओके, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग. अब ध्यान दो, इसको बिना सॉल्व किए बोला ना, तो अब बिना सॉल्व किए कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो. ठीक है, अब हमने क्या किया, ये कंडीशंस को हमने लिख दिया. ठीक है, हमको एक चीज देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. y1 प्लस 3y2 राइट प्लस 4y3. ठीक है, इज माइनस, माइनस क्या है, माइनस आएगा या नहीं, ग्रेटर है ना, माइनस v1 इज इक्वल टू 4. यस और नो? Yes. Very nice. 100%. Everyone agrees. Now, दूसरी कंडीशन y1 प्लस y2 प्लस 5y3 माइनस क्या, V2 V2 इज इक्वल टू 3. अब तुम्हें v1 v2 पता चल गया है कि नहीं, क्या है v1 v2, क्या है, क्या है, 0. तो जब v1 v2 0 हो गया तो ये Zero. इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई. y1 प्लस 3y2 प्लस 4y3 इज इक्वल टू व्हाट, 4. दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन y1 प्लस y2 प्लस 5y3 इज इक्वल टू व्हाट, 3. इज एवरीवन ओके? एवरीवन Okay, ओके? sir. अब प्लीज ध्यान दो, इसको ग्राफिकल से कर भी सकते क्या, तुम सपने में भी ग्राफिकल से कर सकते क्या, कोई मुझे बताओ यस और नो? नो. क्यों? 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, 3 वे. वेरी नाइस, 3 3 वेरिएबल, variable. वेरी नाइस. अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना. देखो y1 प्रेजेंट है, y2 प्रेजेंट है, यस और नो? देखो ना, हमने इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, x1 मिला था या नहीं, x1 कितना मिला था, x1 कितना मिला था, कहाँ गया, एक सेकंड, सो सॉरी. हाँ, x1 मिला था हमको, यस और नो? x2 मिला था, x3 है क्या ये इक्वेशन में कहीं पर, x3 का चांस है, नहीं, No. नहीं है ना. अब अगर x1 है और x2 है तो u1 और u2 क्या रहेगा, इसके लिए देखो ना, पुट करके देखो, ये वाली वैल्यू पुट करो, 0 रहेगा. u1 क्या रहेगा, 0 रहेगा या नहीं? एवरीवन एग्रीज? Yes sir. एवरीवन एग्रीज? पक्का 0 रहेगा? Yes, मुझे नहीं yes. लगा. ये 2x2 है बेटा, ये मेरे से गलती हो गई, ये 2x2 है, 2x2. अब देखो, गलती से लिख दिया मैंने. x1 कितना है, 3. x1 कितना है, 3. x2 कितना है, 2. 2 into 2 कितना हो गया, 4. 3 plus 4 कितना हो गया, 7. तो u1 क्या रहेगा, Zero. रहेगा 0. फिर से इसमें पुट करके देखते हैं, Zero. x1 कितना है, 3. x2 कितना है, 2. 3 into 3 9, 9 plus 2 11, 11 is equal to 11. तो u2 कितना हो गया, 0. तो देखो x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू कुछ थी, कितनी थी, एक बार फिर देख लेते यार. x1 कितना था, 3. ठीक है, 2. x1 3 था, x2 2 था, और अपने को क्या पता चला, u1 कितना है, 0. u2 कितना है, 0. u3 रहेगा या 0. नहीं रहेगा सॉल्यूशन में, क्यों रहेगा u3 सॉल्यूशन में? देखो इक्वेशन कितनी है, 3 है ना, इक्वेशन कितनी है, देखो इसमें पुट करके देखते हैं. 4 इंटू, देखो ना, 4 इंटू 3 कितना, 4 इंटू 3 कितना, देखो ना x1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 कितना, 12 sir. 5 इंटू 2 कितना, 12 plus 5 10. इंटू 2 10. तो 10. आ रहा है कि नहीं, u3 आ रहा है या नहीं, तो u3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ 4. u3, एक सेकेंड, u3 एग्जिस्ट कर रहा है, 0 नहीं, u3 एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर u3 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो y3 क्या रहना चाहिए, 0. सिंपल. एवरीवन एग्रीज? u3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, u3 की वैल्यू भी तुम्हें पता चल रही है, देखो ना, u3 की वैल्यू कितनी पता चल रही है, 22. तो u3 कितना है तुम्हारा, 4. 4. तो u3 4 अगर है
और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम एप्लीकेबल रखना है तो y3 क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 0. तो ये एलिमिनेट हो गया या नहीं। अब क्या बचा, देखो क्या बचा, y1 plus 3y2 is equal to what, y2 4, y1 plus 4 y2 is equal to 3। बिना ग्राफिकल के, बिना एलपीपी के इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, बताओ बताओ, कर सकते हैं। कर दो सॉल्व, डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहीं पे। तो देखो ना, माइनस करेंगे ना, माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा 2y2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो y2 कितना आ गया देखो 1/2, यस और नो, 0.5 1/2 0.5, तो y2 अगर 0.5 आ गया, ठीक है, तो y1 कितना रहेगा 2.5। देखो ना ये वाली इक्वेशन से y1 कितना रहेगा 2.5, मतलब y1 कितना है 5/2, यस और नो एवरीवन। तो हमने विदाउट सॉल्विंग बाय नॉर्मल मेथड, हमने कौन सा मेथड यूज किया बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। हमने y1 कितना बताया, y1 कितना आया था, एक बार देखते हैं, हाँ y1 1/2, देखो y1 कितना आया 1/2, y2 कितना आया 5/2, यस और नो, y3 कितना आया 0, और 0 v1 0, v2 0 0, v3 नहीं है, पता Zero. रखना v3 नहीं है, v1 v2 है। एक बहुत बड़ी कहानी है, यही मेन है, क्योंकि इक्वेशन 2 है ना, जब इक्वेशन 2 है तो स्लैक वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 ही स्लैक रहेंगे, समझ रहा है, v3 नहीं है, समझ रहा। और x1 हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, x1 कितना आया था 3, x2 कितना आया था 2, और यहाँ पे u1 कितना है 0, क्यों, y1 एग्जिस्ट करना चाहिए, u2 कितना है 0, एग्रीड, और u3 कितना है, यस सर एग्री, u3 कितना है 4। So 4 everyone understood what I wanted to explain? Everyone understood? Everyone who is there in the lecture? yes sir. At least 32 people. हेलो सर, Yeah, बोलो हेलो सर। बोलो। सर सेकंड वाले इक्वेशन में y1 के साथ में 2 भी आएगा ना सर, y1 के साथ क्या आएगा बेटा, 2 तो ऊपर आप भूला? पहले भूल गए थे ना लिखना। हाँ चलेगा ना, उस हिसाब से वैल्यू चेंज कर देना ना बेटा, सो सॉरी, मैंने ये भूल गया था ना, ये 2, यस सर, ये 2 बेटा भूल गया ना, तो सब लोग वहां पे 2 ऐड कर दो ना, यहाँ पे समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ है सॉल्यूशन, ये ना बेटा, ये वाला ना, यस ओके चलेगा ना, उतना चेंज कर सकते ना तुम, यस सर। everyone can solve it। yes Now listen, just listen to what we have done। What have we done today? Duality पूरी तरह कंप्लीट किया हमने। Duality में क्या क्या पढ़ा, जल्दी बोलो। weak theorem, कौन सा, weak Weak theorem, theorem. main theorem, weak duality theorem, weak duality theorem, weak theorem। दूसरा main Complementary duality theorem, और इसका नाम Dual. optimal criterion theorem, criteria theorem। और एक Criteria. और क्या पढ़ा, complementary slackness theorem, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ठीक है, एक टॉपिक बचा है डियोल सिंप्लेक्स, ठीक है, इसको ना एक सम लूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत इजी एग्जाम में आता है ये, 10 मार्क्स को आजकल आना चालू किया, अब तो तुम्हारे 10 मार्क्स नहीं है पर क्विज में तो पक्का पूछेगा, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीक करते हैं, इज इट ओके। नेक्स्ट वीक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लेने वाले हैं, क्या लेने वाले, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सेंसिटिविटी मैंने छोड़ दिया, उसका तुमको एक छोटा सा टॉपिक में आधे घंटे का कवर कर दूंगा सेंसिटिविटी, ताकि तुमको एग्जाम में डिफिकल्टी ना हो, पर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, पूरा दिमाग घूम जाता है उसमें, ठीक है, तो वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स, नॉट एन इशू, ओके।